انسانی تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو نسلوں تک دلوں کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ یہ کہانیاں صبر، قربانی، اطاعت اور اللہ پر مکمل بھروسے کی مثال ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک عظیم داستان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محبوب بیٹے تھے، وہ نبی جنہیں اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ صرف اللہ کی نبی تھے بلکہ اللہ کی حکمت پر مکمل یقین کی ایک عظیم مثال بھی تھے۔ ان کی زندگی ہمیں صبر، ہمت، فرما برداری اور اللہ کے سامنے مکمل تسلیم و رضا کا درس دیتی ہے۔ مکہ کے سنسان ریگستان سے لے کر زمزم کے معجزے تک، خانہ کعبہ کی تعمیر سے لے کر قربانی کے عظیم امتحان تک، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ایمان کی سب سے روشن مثالوں میں سے ایک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بابرکت زندگی، ان کے بچپن، ان کے خاندان کی آزمائشوں اور ان کی عظیم میراث کے بارے میں جانیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے گزاری۔ انہیں اپنی قوم کی مخالفت، معاشرے کی بے رخی اور ظالم حکمرانوں کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہر آزمائش کے باوجود وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر رسیدہ ہو گئے، مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ سوچئے، اللہ کی ایک نبی، حق کے پیغام کے علم بردار، ایک نیک بیٹے کی خواہش رکھتے تھے جو ان کے بعد دین کا پیغام آگے بڑھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ سورہ الصافات 30:100۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اسی مبارک دعا کے نتیجے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بے انتہا خوشی کا سبب بنی، لیکن اللہ نے اس بچے کے لیے عظیم آزمائشوں اور بلند مرتبوں سے بھری زندگی مقدر فرمائی تھی۔ یہاں تک کہ بچپن ہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پر بھروسے کی ایک عظیم مثال بننے والے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان ویران وادی میں چھوڑائیں۔ وہ وادی مکہ تھی۔ اس وقت مکہ بالکل خالی تھا، نہ کوئی انسان، نہ پانی، نہ درخت، نہ زندگی کی کوئی علامت، صرف بے انتہا صحرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں تھوڑا سا کھانا اور پانی دے کر واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئی، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہمیں اس سنسان وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے ایک اہم سوال کیا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے مکمل یقین کے ساتھ فرمایا، پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیا عظیم بھروسہ تھا! ایک سنسان صحرا میں بغیر کسی سہارے، بغیر کسی تحفظ کے انہوں نے مکمل بھروسہ اللہ پر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے۔ سورۃ ابراہیم 14:37۔ کچھ ہی وقت میں کھانا اور پانی ختم ہو گیا۔ ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے رونے لگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگیں۔ وہ 7 مرتبہ دوڑیں، پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب زمین سے پانی پھوٹ نکلا۔ یہ زمزم کا مبارک کنواں تھا۔
जमजम के इस मौजिज़े ने इस वीरान सहरा को जिंदगी अता कर दी। जल्द ही काफले और कबाइल वहां आबाद होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मक्का शहर आबाद हो गया। आज भी लाखों मुसलमान हज और उम्रा के दौरान जमजम का पानी पीते हैं और ये सब हजरत हाजरा की सब्र और हजरत इस्माइल की बाबरकत मौजूदगी से शुरू हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का के सहरा में परवान चढ़े। उन्होंने कम उम्री ही से सब्र, ताकत, नज़्म ज़ब्त और अल्लाह पर भरोसा सीख लिया था। वो सच्चाई, बेहतरीन अखलाक और फर्माबरदारी के लिए मशहूर थे। जूं-जूं वो बड़े होते गए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए खुशी और सुकून का बाइस बनते गए। बाप बेटे का रिश्ता बेहद मजबूत था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर मक्का आते ताकि अपने महबूब बेटे के साथ वक्त गुजार सकें। लेकिन अल्लाह ताला इन दोनों को एक अजीम आजमाइश से गुजारने वाले थे। ऐसी आजमाइश जिसकी याद आज भी ईद उल अजहा की सूरत में मनाई जाती है। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। अंबिया के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। इस ख्वाब में वो अपने महबूब बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे। सोचिए ये लम्हा कितना मुश्किल होगा। सालों इंतजार के बाद मिलने वाला बेटा, बेहद मोहब्बत, और अब अल्लाह की तरफ से कुर्बानी का हुक्म। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे बंदे थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नरमी और सच्चाई के साथ बात की। ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। सूरह अस्साफात 37:102। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। ऐसा जवाब जो ईमान, सब्र और अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाने की अजीम मिसाल है। ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। साफात 37:102। बाप बेटी का रिश्ता बेहद मजबूत था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर मक्का आते ताकि अपने महबूब बेटी के साथ वक्त गुजार सकें। लेकिन अल्लाह ताला इन दोनों को एक अजीम आजमाइश से गुजारने वाले थे। ऐसी आजमाइश जिसकी याद आज भी ईद उल अजहा की सूरत में मनाई जाती है। क्या अजीम मंजर था। एक बाप अल्लाह के हुक्म पर अमल के लिए तैयार और एक बेटा अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार। दोनों कुर्बानी की जगह की तरफ रवाना हुए। रवायात में आता है कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डालने की कोशिश की, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों साबित कदम रहे। इसी वाक़े की याद में आज हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। जब वो कुर्बानी की जगह पहुंचे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नरमी से लिटा दिया और ऐन इसी लम्हे अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया और हमने एक बड़ी कुर्बानी के बदले उसे बचा लिया। सूरत अल-साफ़ात 37:107। अल्लाह ताला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान नहीं लेना चाहते थे। अल्लाह दुनिया को उनकी ईमान और इखलास की अजमत दिखाना चाहते थे। उनकी फर्माबरदारी क़यामत तक के लिए अहली ईमान के लिए मिसाल बन गई। इसीलिए मुसलमान पूरी दुनिया में ईद उल अजहा मनाते हैं। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नरमी और सच्चाई के साथ बात की। वक्त गुजरता गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजबूत और नेक इंसान बन गए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक अजीम आज़ाज़ अता फरमाया। उन्हें मिलकर खाना-ए काबा तामीर करने का हुक्म दिया गया। खाना-ए काबा ईमान वालों के लिए इबादत का मरकज बनने वाला था, इस्लाम का सबसे मुक़द्दस मकाम। बाप और बेटा गर्म सहरा में पत्थर उठा उठाकर काबा तामीर करते रहे और साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करते रहे। ऐ हमारे रब,
हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। सूरा अल बकरा 2:127। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने निहायत आजजी और मोहब्बत से अपने वालिद की मदद की। खाना-ए काबा तौहीद की अलामत बन गया, एक अल्लाह की इबादत की अलामत। आज भी दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज के दौरान खाना-ए काबा की तरफ रुख करते हैं और हर साल लाखों मुसलमान हज के लिए मक्का आते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मीरास आज भी मुसलमानों को मुत्तहिद करती है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी के बेटे ही नहीं थे, बल्कि वो खुद भी अल्लाह के मुंतखब करदा नबी थे। उन्होंने लोगों को नेकी, सच्चाई, नमाज और एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनकी बेहतरीन सिफात बयान फरमाई हैं। बेशक वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे। सूरा मरियम 19:54। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वादे पूरे करने के लिए मशहूर थे। वो सब्र करने वाले, अमानतदार और मुखलिस इंसान थे। यही सिफात उन्हें अल्लाह के नजदीक महबूब बनाती थी और इन्हीं की नस्ल से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाई। यूं हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक बाबरकत नबवी सिलसिले का हिस्सा बन गए, जिसने इंसानियत को हक की राह दिखाई। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि हर मोमिन के लिए एक हमेशा जिंदा रहने वाला सबक है। उनकी जिंदगी से हम सीखते हैं मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा करना, आजमाइशों में सब्र करना, खुलूस के साथ अल्लाह की इताअत करना, वालिदैन का एहतराम करना, अपने वादे पूरे करना, हक की खातिर कुर्बानी देना। जमजम का कुआं आज भी बह रहा है, खाना काबा आज भी ईमान वालों का मरकज है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और मजीद इस्लामी तारीखी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा ईमान, सब्र और इखलास अता फरमाए। आमीन।